Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is fine and practicing for board exams. And today let's continue with our mock test series with paper number 9. We have already done 8 papers. So I hope that everyone, those who are seeing this video, at least you have solved 5 papers. बाकी you are continuing 6, 7, 8, 9. जिसने वो ज्यादा कर लिया है that's good enough. बहुत अच्छी बात है. I hope जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो you will have some confidence. शायद आप लोगों को जितना मुझे को लगता है कि maybe you will feel some confidence now कि इतना करने के बाद अब हमको आइडिया लग गया कि what type of questions can be asked in the paper. I hope it is clear. Am I clear? Yes. So let's start with the paper number 9. First of all, as we do, for some motivational thought, punctuality is not about being on the time, but it is basically about respecting your own commitments. Meaning is that if you relate with yourself this thought कि आपने अगर कमिटमेंट की है कि मैंने आज पेपर नंबर 7 करना है, पेपर नंबर 6 करना है, तो मैंने करना है. पंचुअलिटी ऐसा नहीं है कि मैं लेके बैठा, मैं टाइम से यहाँ पे गया, टाइम से वो किया, नहीं. कमिटमेंट पंचुअलिटी मीन्स मैंने अगर ये कर लिया ना, सपोज आज मैंने एक टॉपिक पिक कर लिया है ऑफ एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सीएस, जो भी आपका है. इफ यू पिक वन टॉपिक, प्लीज ट्राई टू फिनिश इट ऑफ विद इन दैट डे ओनली. That is your commitment, that is your punctuality. क्योंकि अगर आप उसको अगले दिन के लिए छोड़ेंगे ना, तो there are 50% चांसेस कि मतलब 50% ही आपको याद रहेगा, जिससे 100% चांसेस आपको अगले दिन तक सिर्फ 50% ही याद रहने वाला है. So try to finish it off, पेपर हो चाहे टॉपिक हो, within that day only, the way you started with. Clear? So let's start without wasting our time. First of all section A, बाकी बातें बीच बीच में हम करते रहेंगे. Question number 1. Vector A आपको दिया है, he is saying vector B is a vector such that dot product is vector b square is magnitude of b square and a minus b you are given root 7. You need to find value of vector b. How will you find out? If you see here what you are given that a minus b is equals to root 7. If I start with this, so I can write, can I take the square first of all, because I need to find out what b square मुझे निकालना है, so I am taking square. If I do square both sides, root will vanish from the right hand side, I will be left with the 7. So now I can write this a minus b into this and this. Like this we can write. Square है तो 2 बार लिख सकते हैं. Now if we simplify it further, आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से. a को मल्टीप्लाई करें पहले इस दोनों के साथ, माइनस ऑफ ab, एंड एज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव तो मैं दोनों को ab b लिखो, एक बात कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड प्लस ऑफ दिस you will have, and you will have this is 7. Now you are given already what? Now can you find magnitude of a square? Yes, we are given the vector, so we can find the magnitude. That will be what? That will be 1 plus 4 plus 9. ये होगा कितना है आपके पास? ये दिस विल बी रूट 14. क्लियर? चलिए, तो रूट 14 I can just put the value here 14. Now this you are given what? If I take this is minus 2ab plus this we need to find out, vector b square equals to 7. This we need to find out. अब आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा. 14 minus twice of, now you are given what this? You are given this as what? Magnitude of b square. So magnitude of b square we can put in place of this plus of b square equals to 7. Clear? So now what? If we simplify it further, you will have to shift it here. It will be what? यहाँ से आप इन दोनों को solve करेंगे, you will get minus of b square, and from here you will get minus of 7. Cancel out. एंड b का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है? b का वैल्यू आने वाला है आपके पास रूट 7. आई होप इट इज क्लियर कि आपने कैसे करना है. एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो 1 मार्क में ऐसा नहीं है कि हमेशा छोटे क्वेश्चन आएंगे. आई होप इट इज क्लियर. बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हमको छोटे ही मिलेंगे, हमको बड़े नहीं मिलेंगे. बट दैट यू नीड टू इंक्रीज योर पेस नाउ. इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, दीज 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो यू नीड टू. अब आपको पता है कि 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंडीशन सेज दैट देयर व्हाट? A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0 होता है. दिस इज द कंडीशन. व्हाट इज A1 B1 C1? These are their direction ratios. This is direction ratios. This is A1 B1 C1 और जो नीचे वाले का A2 B2 C2. So I can directly write 1 into 6 plus 5 into minus 2 plus lambda into 4 equals to 0. If you simplify it to be 6 minus 10 plus 4 lambda equals to 0. I'll get 4 lambda. This is minus 4. इधर लेके जाएंगे तो 4 आएगा and lambda की वैल्यू आ गई 1. So option, which option is correct?
Option A will be the correct answer for question number 2. I hope it is clear. Move on to question number 3 now फटाफट से. जो क्वेश्चन इजी है वो इजी है, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है. ये प्रॉपर्टी ना बेटा ध्यान रखो बार बार, क्योंकि ना ये बार बार पेपर में आती है, बार बार इसका क्वेश्चन आता है. यू आर गिवन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ऑर्डर आपको 3 है, मतलब आपका n दिया हुआ है 3. नाउ ही इज सेइंग कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10i. आपको निकालना है इसका वैल्यू. इसका वैल्यू होता क्या है? इसका वैल्यू का अगर मैं आपको फॉर्मूला याद कराऊं, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1. एन इसमें आपका ऑर्डर होता है. तो अगर आपको ऑर्डर तो आपको पता है, इफ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बिकॉज ये तो आपको पता है कि 3 माइनस 1. और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहां से आएगा? वी आर गिवन वन मोर थिंग, दिस वी आर गिवन a ऑफ एडजॉइंट a. नाउ व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब होता है इसका? बोले फटाफट से. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डिटर्मिनेंट इनटू i. और आपको ये इक्वल टू किसके दिया हुआ है? दिस वी आर गिवन ऑलरेडी इक्वल टू 10i. सो i इफ यू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 10. इफ यू कंपेयर दिस, यहाँ पे पुट कर दीजिए जरा 10. इट विल बी, यू विल हैव स्क्वायर फ्रॉम हियर एंड 10 स्क्वायर विल बी 100. एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. आई होप इट इज क्लियर. ये प्रॉपर्टीज अगर आप याद नहीं रखें तो आई थिंक इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं फटाफट से. यू आर गिवन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू यूनिट वेक्टर्स. सो यू आर गिवन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 फॉर बोथ a as well as b, such that a plus b is also what? A plus b is also a unit vector, means magnitude of that is also equals to 1. You need to find angle between the two. कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन द टू? फटाफट से बता दीजिए. cos थीटा के टर्म्स में निकाल लें, पर अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा करते हैं. मैग्नीट्यूड 1 दिया है तो वी कैन टेक द स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये 1 ही रहेगा. इफ यू ओपन दिस अगेन, दिस विल गिव मी व्हाट? ऐसे मैं सीधा लिख देती हूँ. दिस इज द प्रॉपर्टी ट्वाइस ऑफ a डॉट b इक्वल्स टू 1. हालांकि वेक्टर्स दो वेक्टर्स के बीच में होता क्या है? cos थीटा. cos थीटा क्या होता है यहाँ पे? cos थीटा इज देयर डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड. यही होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. चलिए अब ये दोनों हमको दिया है, डिनोमिनेटर वी आर गिवन, वी आर नॉट गिवन द डॉट प्रोडक्ट, तो हम यहाँ से निकालेंगे. यू आर गिवन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b इज इक्वल्स टू 1. सो वी कैन कैंसिल आउट दिस 2. सो 2ab का वैल्यू कितना आया? 2ab का वैल्यू आया कितना मेरे पास? -1. फैक्टर ab का वैल्यू कितना है? ab विल बी -1/2. सो वी कैन कीप इट हियर, इट विल बी -1/2. और नीचे क्या आएगा? 1 into 1. सो cos थीटा का वैल्यू कितना आया? इट विल बी -1/2. और -1/2 का वैल्यू बता दो फटाफट से कितना आता है भाई? cos इनवर्स ऑफ -1/2 कितना होता है? π/3. बट π/3 इज नॉट इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसकी जो रेंज में लाई नहीं करता. सो दैट विल बी π minus π/3 एंड द आंसर विल बी 2/3. सो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास. यू हैव द ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए अच्छी बात है. तो दोस्तों को बताते जाइए, शेयर करते जाइए कि हाँ भी यहाँ से आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ये छोटी सी हमारी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों का स्कोर है जो इम्प्रूव करा पाऊं. जो पास नहीं हो पा रहे उनको पास करा पाऊं, जो ऑलरेडी 60-70 पे है उनको 80 तक ले जाऊं, जो 80-90 पे है उनको 100 तक लेके जाऊं. सो दिस इज वन ऑफ द लाइक छोटी सी मेरी एक ट्राई मैंने किया आप लोगों के लिए. चलिए फटाफट से आप इसको करेंगे अच्छे से तो आप लोगों को शायद बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं. नाउ यू आर गिवन द फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट? पूछ रहा हो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा? बता दीजिए फटाफट से, बता दीजिए किस पे होगा, कैसे चेक करेंगे? अगर पहले मैं 1 पे चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम देखें कि ब्रेकिंग पॉइंट हमारा 1 पे है तो मैं पहले 1 पे चेक कर लेती हूँ. चलो 1 पे अगर मैं चेक करूँ तो 1 पे कैसे चेक करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई फाइंड LHL एंड देन वी फाइंड RHL एंड अकॉर्डिंग टू दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेंगे और इधर लेंगे 1 प्लस, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी का मतलब है इफ यू आर गेटिंग दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देन वी आर डन. तो हमने सिर्फ मैंने 1 पे ही क्यों चेक किया? मैंने 1 पे इसलिए चेक किया बिकॉज जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है दैट इज वी आर गिवन एट द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ 1 पे दिया हुआ है, इसीलिए मैंने 1 उठा लिया. आप 0-2 करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये मेरा मन था कि फंक्शन में वही ब्रेकिंग पॉइंट है तो उस पर उठा लूं. ठीक है, चलो इस पे चेक कर लेते हैं. अब LHL का मतलब है वी आर टेकिंग ऑल द वैल्यूज विच आर लेसर देन 1. लेसर देन 1 का मतलब है यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन होगा वो होगा x+5 एंड एज वी मूव ऑन टू द RHL you are given 1 plus. 1 plus means all the values which are greater than 1. तो 1 plus में फंक्शन होगा डिफाइन x minus 1. Now what to do? Just put your values. 1 यहाँ पे करेंगे तो 1 plus 5 that will be equals to 6. And if you put 1 here, it will be 1 minus 5 that is equals to -4. And as you can see from here that LHL is not equals to
RHL. So that means to say our function is discontinuous at x equals to 1 itself first of all. इसीलिए मैंने देखा था कि एक बार उस पे चेक कर लेना जिसपे कि ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड हो. अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. I hope it is clear. Now move on to question number 6. प्रोजेक्शन निकालना है. प्रोजेक्शन निकालना कितनी बार बताया, कितनी बार मैंने प्रोजेक्शन निकाल लिया आपको. वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो व्हाट यू नीड टू डू दैट टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट एंड जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. चलिए अब किसका निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए. वेक्टर बी प्लस सी का प्रोजेक्शन किस पे, इस पे. तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्लस सी, इसका डॉट लेना है मैंने किसके साथ, ए के साथ. इट विल बी डॉट विद ए, देन विल हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो बी प्लस सी लिख लेते हैं फटाफट से. बी प्लस सी क्या हो जाएगा यहाँ से, जस्ट ये आपका बी प्लस सी है. यू विल हैव 3i प्लस जे प्लस 2k and you need to take dot of that with a. This is 2i minus 2j plus k only. And magnitude of a will be what? It will be root over 4 plus 4 plus 1. And if you simplify this, you will have 6 minus 2 and plus 2 divided by how much? It will be 3 because root will be root 9. So this will cancel out and answer कितना आ जाएगा आपके पास? Answer will be 2. And according to that, क्वेश्चन नंबर बी का 6 का आपका आंसर करेक्ट होने वाला है. कौन सा फटाफट से बता दीजिए. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. माय थ्रोट इज स्टिल नॉट ओके. थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है. आज भी थोड़ा आवाज थोड़ी ठीक नहीं है मेरी. चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. अगर आप यहाँ से देखें हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो वेक्टर इक्वेशन से पहले अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. So we can write this x minus 3 minus कॉमन लेके और नीचे वाला माइनस माइनस will give me प्लस. इधर से y plus 2 डिवाइड बाय माइनस 3, दिस इज ओके. एंड हियर से अगेन माइनस 2 कॉमन लेना, माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा और इसको शिफ्ट कर देते हैं अंदर डिनोमिनेटर. नाउ इट इज ओके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट योर a is 1 here, your b is minus 3 and your c is minus 1 and your points are what, x1 is your 3 and your y1 is what, it is minus 2 and your z1 is equals to what, it is 2 only. So you need to convert into the vector form. और vector form होता क्या है बेटा, that is equals to vector a plus lambda times vector b. a होता है हमारा पॉइंट और b होता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज जो हमारे होते हैं वेक्टर के. Just put that here. क्या आएगा आपके पास, it will be 3i minus 2j plus 2k and plus lambda times you will have it as I minus 3j minus k. So which option is correct? बता दीजिए फटाफट से देख के. I think फर्स्ट वाले करेक्ट हो रहा है. Yes, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा और फटाफट से हो जाएगा. नाउ इंटीग्रल ऑफ दिस यू नीड टू फाइंड आउट. अब आपको log x का इंटीग्रल तो आता नहीं है तो व्हाट विल डू हियर, जस्ट 1 रख लीजिए यहाँ पे और log x को रख लीजिए ऐसे ही और अप्लाई कर दीजिए. क्या अप्लाई कर दीजिए, आइलेट. आइलेट अप्लाई करना सबको आता है. अकॉर्डिंग टू आइलेट log विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन. सो इफ आई अप्लाई द आइलेट, व्हाट आइलेट सेज, बाय पार्ट्स क्या कहता है, keep your first as it is, derivative integral of second, then minus of integral of derivative of first into integral of second, and then whole integration. Fine. Now just put your values here. It will be what, log x into 1 का integral will be, it will be x minus integral of then 1 by x into x dx. Limit was from 1 to e. यहाँ पे रख लेते हैं जरा 1 to e. Clear है. This will cancel out. So if you put the value, if you put limit here in the first function, it will be log of e into e minus log of 1 into 1. ये तो फर्स्ट वाले की बात हो गई. और सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से क्या आएगा, dx आएगा. dx का होता है सिर्फ x और x का अगर हम करेंगे तो e minus 1. मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. एंड इफ यू सिंप्लीफाई, log e का वैल्यू क्या होता है, इट इज 1. सो e माइनस ये हो जाएगा आपके पास 0 और यहाँ से ये क्या देगा, यहाँ से देगा माइनस और ये देगा प्लस और this will cancel out और answer, sorry, this will cancel out and your answer will be, it will be 1. So you are left with as option A for question number 8. Clear है. फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. अभी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन प्रीवियस 8 पेपर्स. सब मैंने किया हुआ है. अब वही क्वेश्चंस ना उन्हीं के में रिपीट होते आ रहे हैं. एंड व्हाट यू नीड टू थिंक, ऐसे नहीं कि मैंने 8 पेपर किए हैं तो आई हैव डन ओनली 38 into 8 था, दैट मीन ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन. नो, ये मान के चलिए 1:4 का आप रेशियो लेके चलिए
कि आपने सपोज एक क्वेश्चन किया है तो उसके जैसे 4 क्वेश्चन और आपने कर लिए हैं, ठीक है। तो सपोज यू हैव डन 4 पेपर्स, सपोज 4 पेपर्स किए हैं, या तो आपको अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन अगर मैं लगा के चलूं तो 40 into 4 is 160. तो नो, यू हैव नॉट डन 160, यू हैव डन 160 into 4 मींस 640 क्वेश्चंस यू हैव डन। 1:4 का क्वेश्चन रेशो होता है हमेशा क्वेश्चंस में, अगर आप देखें उसके जैसे 4 क्वेश्चन हो आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 की। वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर्स आर व्हाट परपेंडिकुलर। कब होते हैं भाई वेक्टर परपेंडिकुलर, फटाफट से बता दीजिए कब होता है वेक्टर परपेंडिकुलर? जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ले लीजिए डॉट प्रोडक्ट 0, मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे सीधा कर दूं, 2 लैम्डा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, कितना आया? सो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें जो ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ फंक्शन, दिस फंक्शन इज, अगर आप याद करें मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी समझाया था, प्लीज डोंट सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई मत करिएगा वरना क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत आएगा। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो x कॉमन लेने के बाद बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिस्कंटिन्यूटी ना मेन उसी पे देखी जाती है, x ऑफ, वी कैन राइट दिस x माइनस 3 ऑफ एंड x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर देखें फंक्शन 0 पे नॉट डिफाइंड देगा, फंक्शन 3 पे नॉट डिफाइंड देगा, और फंक्शन माइनस 3 पे भी नॉट डिफाइंड देगा। सो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर देयर? There will be what? 1, exactly 2, exactly 3. Yes, exactly 3 points will be there for discontinuity. मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज डोंट सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन बिफोर लाइक फाइंडिंग डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपने डायरेक्टली निकालना, जो भी फंक्शन दिया है उसी को निकालना है, ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि आप इसको कॉन्टिन्यूस बना दीजिए, कॉन्टिन्यूस बनाना मतलब तब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। अब इसने सिर्फ पॉइंट्स पूछे हैं तो एक्जेक्टली जो क्वेश्चन है एज इट इज उसमें बताइए, वरना क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत होने वाला है, क्योंकि आप इसका आंसर निकालेंगे कितना, एक ही निकालेंगे, आप 1 निकाल के लेंगे, क्योंकि आप x कॉमन लेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यू विल कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट विद 1 बाई एक्स एज द आंसर, और आप बोलेंगे कि भाई 0 हमारा पॉइंट दे रहा है नॉट डिफाइंड, इसीलिए एक्जेक्टली 1 पॉइंट इसका होगा, ठीक है, और वो गलत हो जाने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू, अभी कितना सिंपल क्वेश्चन है, पुट क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, पुट cos x इज इक्वल्स टू t, तो क्या देगा, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, ऐसे देगा। ये करेंगे, बहुत सारे लोग सोच लेंगे ये करें। अगर आपने ये किया, देखो मैं थोड़ा एक तो ना गलत भी सीखना जरूरी है, अगर मैंने ये किया सपोज इसमें ये देगा, बहुत सारे लोग ये करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे उसको कि भाई मैम ये मैंने लिख लिया sin x इंटू साइन टू द पावर 5x dx लिख लेते हैं, और फिर डिवाइड बाय नीचे कर लेंगे, t हमारा t 8 हो जाएगा, और इसको हम बना लेंगे dt। मैंने कहा बना लो, बहुत अच्छी बात है, ये बन गया माइनस ऑफ dt, और ये यहाँ पे अब ये sin 5 अगर बच गया, इसका क्या करोगे बेटा जी, इसको कैसे निकालोगे? अगर ये पावर 4 होता तो भी मैं इसको कर लेती। तो अगर आप ये करने का सोच रहे हो तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। आपने क्या करना है इसमें, sin टू द पावर 6 डिवाइड बाय, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए, cos टू द पावर 6x इंटू cos स्क्वायर, ठीक है, ये करिए। तो सिर्फ देखते क्वेश्चन को आंख बंद करके करने देना, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो ना, कुछ इसी तरीके का ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगर आप देखो तो आंख बंद करके चीजों को नहीं करना है। नाउ इफ यू सी दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी tan टू द पावर 6x, और इसकी अगर आप बात करें, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा secant स्क्वायर x dx। अब करिए बेटा सब्स्टिट्यूट, अब नाउ यू पुट योर tan x एज t, और tan x को अगर आप t पुट करेंगे, यू विल हैव secant स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, और अब आपका ये वाला जो पोर्शन है, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम dt एंड दिस विल बिकम t पावर 6, और t पावर 6 का होता है t टू द पावर 7 डिवाइड बाय 7 प्लस c, तो t का वैल्यू सिर्फ t नहीं था, इट वाज tan, सो tan टू द पावर 7x डिवाइड बाय 7 प्लस c, एंड अकॉर्डिंगली व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बता दीजिए फटाफट से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो गलत भी पढ़ना जरूरी है, गलत पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि हम आगे कभी गलत ना करें, एक बार गलती भी जरूरी है, गिरना भी जरूरी है, गिरोगे तो ही आगे चलना सीखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, डॉट दिया है, a माइनस बी निकालना है आपने, निकालिए फटाफट से a माइनस बी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, वी कैन राइट लाइक दिस, 2 बार लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, यू विल हैव दिस माइनस ट्वाइस, एज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मैं बार बार बोलती हूँ, प्लस दिस वैल्यू। अब सारी वैल्यूज मुझे दे रखी है, a इज 4 माइनस ट्वाइस इंटू 2 प्लस b इज व्हाट, विल बी 25, सो दिस विल कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, और कितना बचा आपके पास, 25 बचा, सो
ले लीजिए जरा स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 5. तो वैल्यू व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताते रहिए. आप लोगों को कुछ नहीं जाता, मेरे को अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ मेरे से बात करते हैं, कुछ इंटरेक्शन होता है. आई फील लाइक, ठीक है, लाइक आई फील लाइक अच्छा लगता है मुझे. अगर आप देखें यहाँ पे इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन आपको निकालनी है इस पॉइंट की. क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 बाई a, दिस इज y माइनस y1 डिवाइड बाई b एंड z माइनस z1 डिवाइड बाई c. तो अगर आप यहाँ से देखें तो x माइनस x1 फर्स्ट ऑफ ऑल कितना हो जाएगा, x माइनस x1 ये ऐसे हो जाएगा, और देन y माइनस y-4 हो जाएगा, और इधर से z माइनस कितना 5, तो इट विल बी प्लस. डायरेक्शन रेशियोज की बात कर लेते हैं. अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन चेक करें, यहाँ पे ये ठीक है इक्वेशन, तो इसका रेशियो इसके सेम हो जाएगा, क्योंकि जो पैरेलल वेक्टर होगा दोनों को डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं. लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो यहाँ पे अगर इसको माइनस कॉमन ले लें तो ये ऐसे होगा, और ये y-4 देगा यहाँ से. तो यहाँ पे आप -5 पुट करेंगे, सीधा सीधा 5 पुट मत कर देना वरना गलत हो जाएगा आंसर. एंड यहाँ से ऑप्शन नंबर, यहाँ से आपका डायरेक्शन रेशियो जो सी होगा वो वैल्यू हो जाएगा 6 यहाँ से. सब देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. देखो जिसमें तीनों प्लस है वो तो नहीं होगा, बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता. डी की अगर बात करें, डी में 2 माइनस के तो ये भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. क्लियर है बात. चलिए 14 की बात कर लेते हैं फटाफट से. सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए तीसरा क्वेश्चन दे दिया उसने. आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला दे दिया. पी का वैल्यू देख लो फटाफट से कितना आएगा. कितना पी का वैल्यू 1/x, और क्यू कितना आपके पास sin x है. कोई बातें निकाल लेते हैं. इंटीग्रल फैक्टर कितना होता है आपके पास, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, मतलब 1/x dx, एंड दिस विल गिव यू e टू द पावर log of x, और e टू द पावर log बन जाएगा 1, एंड यू आर लेफ्ट विद जस्ट x एज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब सीधा सीधा क्या निकला, वैल्यू पुट कर दीजिए y इंटू योर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इंटू योर sin x dx. ठीक है, नाउ yx. अब इसकी अगर बात करें तो फिर से यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आइलेट, और आइलेट के हिसाब से क्या बन जाएगा, ये हमारा आइलेट. आइलेट में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा सेकंड फंक्शन होगा, दिस विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन. तो कीप योर फर्स्ट एज इट इज. यहाँ पे कितना आएगा, डायरेक्टली लिख दूं माइनस cos x, और इसके यहाँ से आप करेंगे तो x का हो जाएगा 1, और ये बचेगा sin और cos, और cos का हो जाएगा sin फिर से, और ये आंसर आने वाला है. सो yx इक्वल्स टू दिस वन. अब इसको अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इसको जरा शिफ्ट कर लीजिए इधर. yx प्लस x cos x इक्वल्स टू sin x. माइनस वाले को जरा लेफ्ट में ले आइए. नाउ टेक x कॉमन, यू आर लेफ्ट विद जस्ट y प्लस cos x इज इक्वल्स टू sin x प्लस x. सो x कॉमन किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है x ऑफ y प्लस cos x. कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बोलो फटाफट से. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैंने बोला ना कभी लंबा भी आ सकता है, कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई छोटा भी आएगा, तो ये देखते पता चल जाना है. अब इसने बोला कि फंक्शन को बताइए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कहाँ है. चलिए फटाफट से वो तो बाद में बात करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो दिस विल बी द डेरिवेटिव, एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस क्या हो जाएगा यहाँ से, हाउ कैन वी राइट इट. आई कैन राइट इट जितना मुझे समझ में आ रहा है. I can write like this. 4 को थोड़ा मैंने ब्रेक कर लिया. Now from these 3 I can take 3 common. You are left with x square minus 2x plus 1. अब आप बोलोगे मैम आपको तो समझ में आ गया, कैसे हम कैसे करेंगे. देखो this will come from the practice. प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे मुझे आ जाता है. This is for all x belongs to R. तो अगर आप देखें this value is greater than 0, और ये भी क्या है, हमेशा क्या रहेगा, greater than 0 रहेगा, और ये भी क्या है, ये तो है greater than 0. तो टोटल फंक्शन इज what, greater than 0. और इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. फंक्शन इज ऑलवेज क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा. कहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 अगेन. ठीक है, चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की. जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको भी चीजें बेहतर समझ में आती चली जाएंगी. आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये होने वाला है, इस क्वेश्चन में ये होने वाला है. चलिए वेक्टर ए क्या दिया, स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ट्रांसपोज जो उसका आप लेंगे वो आएगा नेगेटिव में. ठीक है, वो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर होगा वो क्या होगा. ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं. ए स्क्वायर को वी कैन राइट लाइक दिस. ए स्क्वायर को हम क्या पूछा कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा. अगर ट्रांसपोज लिया तो हाउ कैन यू राइट लाइक दैट, राइट, हाउ कैन यू राइट दैट.
तो आई कैन राइट लाइक दिस, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज अंदर लेके स्क्वायर बाहर कर लेती हूँ, एक ही बात है। तो ट्रांसपोज का वैल्यू था क्या, अभी देखो यहाँ से माइनस ए था ना, माइनस ए का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर क्या देगा, प्लस का ही देगा। तो देखो जो ट्रांसपोज लिया था जिस चीज का, वो चीज वही आ गई। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ, ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होगी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज का मतलब अगर आपके पास सेम आ जाए वो सिमेट्रिक होती है, और ट्रांसपोज अगर नेगेटिव में आ जाए वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है। दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, यही मतलब होता है। ठीक है, फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, x इक्वल्स टू, अब ग्राफ बना लो फटाफट से। क्या ग्राफ बनेगा इसका, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये आपके पास x 2 है, ये है x इक्वल्स टू 4, और ये आपके पास ग्राफ है y स्क्वायर 9x का। और आपसे उसने पूछा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके बीच का जो एरिया होगा वो कहाँ होगा, तो कहाँ से लेके होगा, 2 से लेके 4 होगा, और y dx हो जाएगा। y का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2 to 4, y का वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी 3 of root x dx, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर 3 कॉमन, इसका इंटीग्रल विल बी 3/2, और 3/2 इधर रख के और 2 इधर ले आते हैं जरा, और लिमिट पुट कर दीजिए 2 to 4। इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर यू विल हैव ट्वाइस ऑफ 4 to the power 3/2 minus 2 to the power 3/2। एम आई क्लियर, यही होने वाला है। देखिए ये इतना लंबा छोटा कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैं इसके लिए टाइम वेस्ट करूं बहुत सारा बैठ के आपके लिए। ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ, यू कैन राइट लिख 4 ऑफ 4 रूट 4 माइनस 2 ऑफ दिस, और यहां से आप 2 कॉमन लीजिए, आपके पास कितना आएगा, कितना आने वाला है, इसको आई कैन राइट, ये बन जाएगा 8 माइनस 2 रूट 2, और 2 यहां से कॉमन लेंगे अगर आप, तो 8 माइनस 4 माइनस रूट 2, कुछ इस तरीके का आने वाला, और ये बन जाएगा 4 आपके पास। तो ऑप्शन आप देखिए 4 ऑफ 4 माइनस रूट 2, ये आएगा। देखिए ऑप्शन है आपके पास, यस वी हैव द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपने देखो अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन दी है तो आपको मैच करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए फटाफट से फिर से इसी तरह का क्वेश्चन आ गया। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का ग्राफ इस बार कहाँ बनेगा, इस बार बनेगा बेटा जी ग्राफ ऊपर कहां से, बस इस बार भी y पे है 2 से लेके 4 पे, लेकिन उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो मतलब ये वाला, तो इस बार बनेगी लिमिट 2 to 4, लेकिन कहां पे, इट विल बी x dy दिस टाइम, बिकॉज वी आर डीलिंग दिस टाइम विद द y एक्सिस। तो ये क्या बन जाने वाला है, इट विल बी 2 to 4, और y का x का वैल्यू विल बी व्हाट, इट विल बी रूट 2 y dy, sorry, it will be like this. So you will have twice बाहर इंटीग्रल 2 to 4 root y dy, clear है बात, and this will give me twice of y 3/2, 3 नीचे 2 ऊपर, 2 to 4, फिर से दिस कैंसिल नहीं होगा, it will be 4/3, and if we simplify it further 4 power 3/2 minus 2 to the power 3/2, फिर से कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन आया है। सो 4/3 ऑफ क्या निकाला था, पीछे निकाला था 8 minus 2 रूट 2, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, यू विल हैव 8/3 ऑफ 4 minus रूट 2। दिस टाइप ऑफ आंसर वाज देयर, एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आई होप इट इज क्लियर। 17 और 18 एक ही तरीके के, बस एक x एक्सिस पे है और एक y एक्सिस पे है। क्लियर है बात, चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं असर्शन रीजनिंग के तरफ, एंड सो वी कैन एंड आवर सेक्शन ए फटाफट से। नाउ असर्शन के बाद उसने किया कि a b और c दिया हुआ है, a और c दिया है, उसने a और c निकाला है, अच्छी बात है। अब देख लीजिए वो ट्रू है नहीं फॉल्स है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास ट्रू आने वाला है। दिस कंडीशन इज ट्रू, आप करके देखिए, दिस इज व्हाट, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, एंड 6 माइनस ऑफ दिस तो 8 आने वाला है, बिल्कुल ठीक है। 3 ऑफ दिस 12 माइनस 5, ये भी 7 भी आने वाला है। 3 ऑफ दिस सो 9 माइनस 3 6, ठीक है, और 3 ऑफ दिस 6 माइनस 4, ये भी ठीक है। तो दिस कंडीशन इज ट्रू, असर्शन तो ट्रू है। रीजनिंग की बात करते हैं, उसने बोला कि ए और बी क्या है, हमारे पास सेम ऑर्डर के हैं, m क्रॉस n सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ a प्लस बी, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल a प्लस बी a प्लस a के बराबर होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को डिफाइन करते हैं अंडर एडिशन, बट क्या ये जो फर्स्ट वाले को मैंने सॉल्व किया था
उसके लिए मैंने सेकंड वाला यूज किया, मैंने कहीं कम्यूटेटिव लॉ वगैरह यूज किया नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीजें तो ठीक है, लेकिन जो हमारा आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। असर्शन बोल रहा है कि x इज ए वाइफ ऑफ y, व्हाट? x इज ए वाइफ ऑफ y, r इज रिफ्लेक्सिव। एक बात बताओ भाई, रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि x, x, और x, x का मतलब होगा x इज वाइफ ऑफ y x। कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकती है? तो ये कंडीशन तो होगी बेटा, ये क्या फॉल्स, ये तो फॉल्स हो गया यहाँ पे, ये फॉल्स है तो क्या रीजनिंग को चेक करने की जरूरत है? मैं कहती हूँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ए फॉल्स है तो उसके बाद और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, सीधे सीधा लगा दो आंख बंद करके ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर कभी ऐसा आ जाए कि चलो आपको दे भी चेक करना, आपको सब्जेक्टिव में बताना है, तो कर लिया, आर्क में देख लेते हैं, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि कोई खुद का फादर नहीं हो सकता रिफ्लेक्सिविटी के अंदर। सिमेट्री की बात करते हैं, एक्स फादर है वाई का, वाई फादर है एक्स का, इज इट पॉसिबल? नहीं है। ठीक है, फिर उसने बोला एक्स फादर है किसका? वाई का, और वाई फादर है किसका? जेड का। तो क्या बताओ, ये आपस में फादर होंगे? जी नहीं, ग्रैंड फादर होंगे भाई। तो ये बिल्कुल, ये भी फॉल्स ही है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इससे बता दिया आप लोगों की कभी सब्जेक्टिव में आ जाए। चलिए ठीक है, सो दिस वाज एंड ऑफ सेक्शन ए। सो नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर बी विद आवर क्वेश्चन नंबर 21। वो छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। देखिए, मैंने पहले बोला कि जब लिमिट कुछ इस तरीके से हो, -a to a हो, तो हमेशा पहले ओड इवन जरा चेक कर लीजिएगा। ओड इवन कैसे चेक करते हैं यहाँ पे, कि आपको जो भी फंक्शन आपने को दिया हुआ है, आप उसमें -x पुट करिए। तो x जहां जहां -x पुट करिए तो क्या देगा? 1 ऑफ माइनस। अगर यहाँ पे x स्क्वायर पे माइनस स्क्वायर रखूंगी भी तो वो प्लस ही बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बन जाएगा साइन ऑफ -x, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर ऑफ -x। और cos x माइनस तो होता ही इवन फंक्शन है, तो ये तो प्लस ही बनाएगा, लेकिन साइन वाला क्या बना देगा? वो आ जाएगा बाहर। और अगर आप ये देखें तो कुछ इस तरीके का फंक्शन आपके पास बनने वाला, 1 - x स्क्वायर cos sin x ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था ये वही है, सेम चीज है। और अगर ऐसा कुछ हो गया, इसका मतलब कि क्या हुआ, दिस वी आर ओड फंक्शन एंड वी कैन डायरेक्टली से दैट इंटीग्रल का वैल्यू जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा i, बिकॉज वी आर गिवन द ओड फंक्शन। ठीक है बात, 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, इतना कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करें मैडम? ये तो अब आप बोलोगे ये तो नॉट डिफाइंड है, कुछ डिग्री नहीं है, क्या है? अरे भाई क्यों घबराते हो? कुछ नहीं करना, dy/dx दिया हुआ है ना, इस cos को इधर ले जाओ, कितना दे जाएगा? cos इनवर्स a देगा, और a लगा हुआ है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू बन गई पूरी। अब क्या करना है, शिफ्ट कर दो जरा, cos इनवर्स a और dx को इधर ले आओ, लगा दो इंटीग्रल का साइन, y हो जाएगा दिस, cos इनवर्स a कांस्टेंट है, dx को हो जाएगा x, प्लस में लगा दो c, आंसर आ गया आपका, 2 नंबर मिल गया आपको फटाफट से इसके। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मजा आया ना? देख लीजिए ध्यान से, दोबारा से, मजाक कर रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ फटाफट से बढ़ लेते हैं। चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिविटी का मतलब होता है बेटा 1-1 क्वेश्चन, 1-1 फंक्शन सर। ठीक है, अब 1-1 का मतलब आगे क्या करेंगे? अब आपको दिया है कि आपने उसने फंक्शन चेक करना है 1-1 पे। कैसे चेक करते हैं 1-1 पे? हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं लेट x1 and x2 बिलोंग्स टू आवर डोमेन। फिर हम अज्यूम करते हैं दैट f of x1 is equals to f of x2, और हम प्रूव कर देंगे कि x1 और x2 जो हमने अज्यूम किया था वो दोनों क्या है? बराबर है। अगर वो बराबर आ गए देन गुड इनफ, और बराबर नहीं आए तो क्या करेंगे? नहीं आए तो नहीं आए, फिर 1-1 नहीं होगा। तो f of x1 का मतलब यहाँ से क्या होगा? x1 का मतलब होगा x1 क्यूब, और यहाँ से होगा x2 का x2 क्यूब। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक? Now if we simplify it further, we can write like this: what x1 cube minus x2 cube equals to 0, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं कह पाओगे। Now we can, if you open the whole square of a minus a cube minus b cube, that is what x1 minus x2, x1 square plus x2 square minus x1 x2। अब इनके लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर हम इसको 0 पुट कर देते हैं तो आर वी गेटिंग द वैल्यू x1 equals to x2? Yes, we are getting x1 equals to x2। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या हुआ हमारा? फंक्शन विल बी 1-1, और वी कैन से फंक्शन विल बी इंजेक्टिव। ठीक है, और बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
24 की तरफ। ओहो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन क्यों है। यस, क्या करेंगे, cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 कब होता है, फटाफट से बताइए। 5/3 पे सीधे इस तरफ दो, 5/3 पे होता है, 60 पे होता है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ, और साइन 5/3 पे होता है, पाई 60 पे होता है, तो कितना हुआ, सॉरी 30 पे होता है ये, हाँ, तो ये कितना हुआ 5/3, तो कितना आया 5/3 प्लस 5/3, और आंसर कितना आ गया 2/3। अब देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर लायक था नहीं था, पर करना तो है, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। So answer will be 2/3 for question number 24. Now move on to question number 25. Find the area of triangle whose vertices you are given. अब कौन से निकालोगे, इंटीग्रेशन से मत निकालो ना भाई, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 नंबर में क्यों जान खा रहे हो अपनी, कैसे निकालते हैं एरिया, इट्स 1/2। पहले अपने पॉइंट्स को रख लो जरा इधर, और फिर लास्ट वाले कॉलम को क्या बना लेते हैं, दैट यू मेक इट एज 1 1 1। यहाँ से आपका आंसर आ जाने वाला है, हाउ मच इट विल बी, निकालो फटाफट से, -2 ऑफ, इट विल बी 2 + 8, then +3 of 3 + 1, and then +1 of -24 + 2, and you will have from here this 6 is -20 + 12 and -22, and you are just left with 1/2 into how much, -30, you will get -15, और एरिया की बात करें तो मॉडुलस साइन जरा लगा देना, आंसर will be 15 square units will be the answer, 15 square units will be the answer। क्लियर है, अच्छा है, सेक्शन ए और बी खत्म हो गया, फटाफट से खत्म हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। ठीक है, अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो इसका मतलब आपने ट्राई ही नहीं किया। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि इफ यू हैव एनी डाउट्स, तो अगर बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा है मतलब ही और शी हैज स्टडीड समथिंग, और जिसने डाउट पूछा नहीं मतलब उसने कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ पढ़ें और फिर जब आप उसको सेल्फ स्टडी करें, रिवाइज करें, तो आपको कोई डाउट नहीं आए। ठीक है, चलिए अब एक जोक सुनाती हूँ, और पास रहा है, वैसे तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। एक मक्खी की ना शादी हो गई एक मच्छर से। अगले दिन मक्खी बहुत रो रही थी, तो मक्खी की बहन ने पूछा उससे कि भाई क्या हुआ, तो मक्खी बोली यार रात को ना मच्छर बहुत काट रहे थे और मैंने गुड नाइट चला दी तो तेरा जीजा मर गया। ठीक है, तो बकवास से जोक था, फिर भी सुन लो। ठीक है, चलिए चलिए अब पार्ट कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 की, विच इज आवर सेक्शन सी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, यू आर गिवन, अगर आप ये देखें ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का है, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस। क्या ग्राफ बनेगा इसका, हालांकि मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो सेंटर से पास करता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो इसको पुट करें 0 के इक्वल, तो x का वैल्यू यहाँ से देने वाला -3। इसका मतलब x का जो ग्राफ होगा वो -3 से पुट यहाँ से जाएगा, एक इधर जाएगा और एक जाएगा इधर। ठीक है, लेकिन उसने मुझे बोला है ये तो हो गया स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, इवैल्यूएट द ग्राफ एरिया अंडर द कर्व अबव x एक्सिस एंड बिटवीन -6 to 0। लेट्स सपोज दिस इज -6 एंड दिस इज 0, ये ओरिजिन। तो आपने जो ग्राफ बनाना है एरिया अंडर दिस कर्व, x एक्सिस बोला ना, और ये वाला समझ में आती है। चलिए, तो अगर आप यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो ग्राफ जो फंक्शन बनेगा एरिया अंडर द कर्व दैट विल बी -6 to -3 फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर दूसरे वाला बनेगा 0 से लेके 3 पे, 0 से किस पे, सॉरी -3 से, सॉरी -3 से लेके 0। अब अगर आप देखें कि ग्राफ में किधर क्या वैल्यू आएगी, ये ग्राफ मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ हमेशा मॉडुलस का क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पे क्या देगा -(x + 3), और यहाँ पे फंक्शन कहाँ मूव करता है, इट इज मूविंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी प्लस ऑलवेज। ठीक है, हो गया, बस इतना ही करना है, आगे आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। एंड व्हाट विल बी दैट, माइनस अगर कॉमन ले ले आपके पास कितना आने वाला है, x² + 3x, and it will be from -6 to -3, and similarly from x² + 3x from where to where it will be -3 to 0. Now if you simplify it further, आपके पास कुछ इस तरीके की चीजें आने वाली है, -2 9/2 + 9 and minus of -18 + 18 प्लस विल हैव ये 0 और माइनस के साथ कितना देगा आपको ये 0 माइनस ऑफ 9/2 -9। क्लियर है, जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको,
It will be 9/2 minus 9. This will cancel out and minus 9/2 plus 9. Now what you are getting? क्या हुआ, सब जीरो हो गए? प्लस माइनस, अब ठीक है. सो दिस विल कैंसिल आउट और बात बाहर क्या था, बाहर ऑलरेडी माइनस साइन था. अच्छा माइनस तो मैंने अंदर ले लिया ऑलरेडी. ठीक है, तो ये कितना देगा, -18/2. आंसर आने वाला आपका 9. क्यों? क्योंकि मॉडुलस बात एरिया की बात करें तो मॉडुलस साइन आ जाएगा. ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आंसर आ जाएगा 9². अगर इनकेस कभी प्लस में माइनस में आंसर आ भी जाए ना तो मॉडुलस लगा देना, आंसर प्लस में बन जाएगा. ठीक है, तो आंसर विल बी 9² यूनिट्स फॉर द क्वेश्चन. प्लीज क्रॉस चेक योर कैलकुलेशंस. मैं बार बार बोलती हूँ मेरी कैलकुलेशंस को मत जाइए. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट ए मशीन. कई बार मेरे से भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, मैं क्लास में भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ. सो प्लीज डोंट फोकस ऑन द स्टडी माई कैलकुलेशंस, जस्ट फोकस ऑन योर व्हाट कॉन्सेप्ट पार्ट. ठीक है, चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की. एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ दिस फंक्शन. क्वांटिटी एग्जामिन करनी है. क्या करते हैं क्वांटिटी एग्जामिन करने के लिए? हम चेक करते हैं कि LHL इक्वल्स टू RH आ जाए और फंक्शन उस पॉइंट पे भी क्या आ जाए, सेम आ जाए. तो सबसे पहले LHL की बात कर लेते हैं. किस पॉइंट पे चेक करना है, पहले तो हम ये देखो 2 पे चेक करना है. तो LHL की अगर बात करें, LHL की बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पे फंक्शन. क्या फंक्शन देगा? 2 का मतलब ऑल द वैल्यूज विच आर लेसर देन 2. तो यहाँ पे कितना फंक्शन दे रहा है वैल्यू? इट इज गिविंग मी लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x - 2 और नीचे है. अब नीचे वाले को ना मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, फैक्टराइज करके लिख रही हूँ. बिकॉज a - b का a² - b² का होल स्क्वायर हमारे पास है. a² - b² का हमारे पास फॉर्मूला है. So x - 2 and x + 2 and if you simplify this, ये कैंसिल हुए. लिमिट पुट कर दीजिए 2/4, आंसर आ जाएगा 1/2 LHL का. सिमिलरली वी टॉक अबाउट द RHL ऑल्सो. RHL की वैल्यू अगर हम बात करें और इसकी अगर हम f(2) की भी बात करें, f(2) पे वैल्यू कितना दे रहा है वो? f(2) पे वैल्यू मुझे दे रहा है 1/2. तो देखो LHL तो हमारे कुछ कुछ पास में आ रहा है. RHL की बात कर लेते हैं. RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस log of x माइनस log of 2 डिवाइड बाई x - 2. अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आता है सिंप्लीफाई करना? नहीं आता ना. चलिए एक प्रॉपर्टी बताती हूँ कि log की प्रॉपर्टी कहती है, अगर आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 log of, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी, 1 + x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है. हम यही फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा बनाएंगे. कैसे? देखिए लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास क्या है 2 प्लस. इसका मतलब है x टेंड्स टू 2 प्लस का वैल्यू, 2 प्लस का मतलब क्या है, सॉरी, जैसे कि मैंने आपको लिमिट चेंज करने दिखाई. आप क्या करें, शिफ्ट कर लीजिए इसको, x - 2 कर लीजिए एंड टेक दैट इज इक्वल टू सम y. ठीक है, अब फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log ऑफ x की वैल्यू को हम कितना रख देंगे, x विल बी y + 2. ठीक है, तो log ऑफ y, लिमिट चेंज करना है इस तरीके से, log 2 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y + 2 - 2. दिस विल कैंसिल आउट. तो क्या बना मेरे पास, अब मेरे पास बना लिमिट y टेंड्स टू 0. नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ log. नाउ log ऑफ आई कैन राइट लाइक दिस, y + 2 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं इसको, और नीचे क्या है मेरे पास, y है. ठीक है बेटा जी. नाउ वी कैन राइट दिस, जस्ट लिमिट y टेंड्स टू 0. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. log ऑफ आई कैन राइट दिस 1 + y/2, 1 + y/2. क्यों, जब सेपरेट करोगे तो 2/2 1 दे देगा और y/2 ऐसे हो जाएगा. और नीचे क्या है, नीचे सिर्फ y है. ठीक है, अब कैन वी मेक, जैसे हम साइन वाले में करते हैं ना कि अगर हमारा एंगल सेम नहीं होता तो हम सेम बना लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या है कि log ऑफ 1 + x, log ऑफ 1 + x डिवाइड बाई x का आंसर आता है 1. मतलब 1 प्लस में x है तो नीचे x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस में क्या है, y/2 है, तो नीचे सिर्फ y/2 चाहिए. तो क्या कर लेते हैं, इसको y/2 बना लेते हैं. ये लो, ये बना लिया y/2. तो अब इस चीज का पूरी का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, इसका वैल्यू हो जाएगा 1. और व्हाट आई एम लेफ्ट विद जस्ट 1/2. और अगर आप यहाँ से देखेंगे, सॉरी, एंड इफ यू सी, हमारे पास यहाँ से क्या आया, LHL का वैल्यू भी कितना आया था, 1/2 था. एंड f of 2 भी was what, it was 1/2, and we got the RHL also 1/2. So all the values are what, equal, and so we can say the function is continuous at x equals to 2. I hope it is clear. देख लीजिए फटाफट से जरा से, LHL, RHL एंड आपके पास फंक्शन उस पॉइंट पे क्या आ रहा है, हमारे पास तीनों चीजें सेम आ रही है. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28.
ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर इस तरीके से तीन चीजों से साइन इनवर्स है थी रो या फिर कॉस इनवर्स है थी रो, तो आपके पास अगर पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, तो आप बोलोगे मैडम वहां पे तो मैं 3 पाई बाई 2 था, तो हमने उसको पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 कर लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत है करने में, अभी तो पाई है ना, तो उसको ब्रेक कर लो, 3 में कितने में कर लोगे, पाई बाई 3 पाई बाई 3 और पाई बाई 3। तुम करके तो देखो, तुम्हारा आंसर अपने आप आने वाला है बेटा जी। ठीक है, जैसे वहां पे 3 पाई बाई 2 था, तो आपने पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 रखा है, यहाँ पे पाई है, तुम पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 कर लो, क्योंकि तीनों को ऐड करोगे तो आने वाला तो पाई है। ठीक है, अब इसको अगर मैं पहले वाले के इनवर्स के इक्वल करूं, cos इनवर्स x का मतलब पाई बाई 3, cos इनवर्स x मतलब पाई बाई 3 का मतलब x का वैल्यू आने वाला है cos पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, cos 60 होता है ना, cos 60 का मतलब कितना हो गया, x का वैल्यू आ गया 1/2, और अगर x 1/2 हुआ तो y भी कितना होगा, 1/2 होगा, और z भी कितना होगा, 1/2 होगा। अब जरा पुट कर दीजिए इधर से, कितना आ जाएगा, 1/4 स्क्वायर करना है y का, 1/4 ये भी स्क्वायर करना है, z भी ये भी स्क्वायर करना है, प्लस ट्वाइस ऑफ 1 कितना 2 आएगा, x अकेला है, 1/2 1/2 और 1/2, और अगर आप यहाँ से देखें ये कैंसिल आउट हो गए, ये तीनों क्या देंगे, ये देंगे 3/4 1 1 1, और यहाँ से कितना 1/4 बच रहा है, कितना हो गया 4/4 हो गया, 4/4 का आंसर कितना आता है 1 आता है, और ये तो प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, हो गया खत्म। देखिए इसके लिए यही करना है, इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है तुम लोग को, बात समझ में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं फटाफट से। एबीसीडी है वर्टिसेस एबीसी के, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एबीसी। ठीक है, एबी बीसी एंड एसी, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक निकाल दो बाकी के निकाल लोगे। चलो एबी का निकाल देती हूँ मैं, एबी कैसे निकालने आपने, कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं पहले, डायरेक्शन रेशियोज मैं एक निकालूंगी, आप बीसी और एसी के निकाल के मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए कैसे निकालता है रेशियोज, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पहले वाला -1 -3, फिर 1 -5 और दूसरे वाला 2 माइनस ऑफ दिस प्लस 4, तो डायरेक्शन रेशियोज कितने आ गए, -4 आ गया, इसके वाला कितना आ गया, -4 आ गया, और इसके वाला कितना आ गया 6 आ गया, ये तो हो गए रेशियोज। अब मुझे निकालना डायरेक्शन कोसाइंस, तो मैं क्या करती हूँ बेटा जी, डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैं क्या करती हूँ, बोलो फटाफट, जो उनका स्क्वायर होता है नीचे एड ऑन करके सब उसमें डाल देते हैं, किसमें, अंडर रूट में। सो -4 डिवाइड बाय कितना, ये भी कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 36, और ये वाला 6 डिवाइड बाय, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस ये करके ये डाल देना। देखो मैंने एबी का निकाल दिया, अब एसी बीसी के निकाल लो प्लीज। अब आप एसी के मुझे बता दो और बीसी के निकाल दो, आपके पास निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, और नहीं अगर आपने यू आर नॉट एबल टू निकाल इफ आर नॉट एबल टू फाइंड आउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बट जरूरत पड़ेगी नहीं कमेंट करने की, क्योंकि आप डायरेक्ट ही निकाल पाओगे, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास आया, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दैट फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू अस कॉन्टिन्यूअस। हमें निकालना है ए का वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब वी हैव दैट LHL इक्वल टू RHL एंड इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलिए फंक्शन एट दैट पॉइंट, फंक्शन कौन सा है 2 है, 2 रख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना इट विल गिव मी व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन आने वाला है, इट विल बी 2x माइनस 1, और इधर से आने वाला है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो यहाँ पे कितना आने वाला है x प्लस 1 आने वाला है, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, तो लिमिट पुट करनी है सिर्फ, कितना करोगे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, यहाँ से कर लो 3, और यहाँ से कितना हो गया ये, तो ये का वैल्यू कितना आ गया। सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग मतलब स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। चलिए फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। प्रूव दैट 3 वेक्टर्स आर गिवन बिलो आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये बता दीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। देखिए आप बोलो कि आपने बताया था कि परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 ले लो, बिल्कुल सही बताया था, लेकिन म्यूचुअली का मतलब पेयर वाइज, म्यूचुअली का मतलब होता है पेयर वाइज। ऐसे मत कर देना कि ए डॉट बी और डॉट सी निकालने बैठ जाओ और मैडम 0 तो आ नहीं रहा, इसका मतलब वो क्या हो गए, वो नहीं है परपेंडिकुलर। अरे बेटा जी ये नहीं करना होता, ये नहीं होता इसका मतलब। म्यूचुअली मतलब पेयर वाइज लेना है आपको। ठीक है, पेयर वाइज, पेयर वाइज का मतलब होता है आपको निकालना ए डॉट बी पहले चेक करेंगे, फिर आप चेक करेंगे क्या, फिर आप बी डॉट सी चेक करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सी डॉट ए चेक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर वो 0 आ जाता है देन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और नहीं आता दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बात समझ में आती है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं ए डॉट बी की। मैं फिर से एक बात करूंगी, बी डॉट सी डॉट ए आप करेंगे। ए कोई सा भी एबीसी मान लीजिए, ये सपोज मेरा ए है और ये सपोज मेरा बी है,
तो इनका डॉट में अगर निकालूं तो 1/7 1 स्केलर क्वांटिटी है, 1/49 में बाहर लिख लेती हूँ दोनों को मल्टीप्लाई करके। अंदर को अगर आप करोगे तो कितना आएगा 6 माइनस 18 प्लस 12, ये तो दोनों 18 देगा, माइनस 18 ऑलरेडी था तो कितना आ गया 0 आ गया। और अगर ये 0 आया इसका मतलब ये कहता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसी तरीके से आप बीसी की निकाल लीजिए, बीसी का निकालोगे तो 1/49 आपके पास आएगा 18 माइनस 12 एंड माइनस कितना 6, तो ये भी आपके पास 0 आने वाला है। इसका मतलब वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एज वेल एज वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए हो जाएगा। प्लीज सिमिलरली मत लिखिएगा, पूरा निकालिएगा, सिमिलरली मत लिखिएगा, पूरा निकालना पड़ेगा। सो दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31 कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस यू नीड टू टेक योर पेयर वाइज परपेंडिकुलरिटी, ए बी सी तीनों का एक साथ नहीं ले देना है, ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड इट। चलिए फटाफट से दिस वाज एंड ऑफ आवर सेक्शन सी, बढ़ते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। हमारे पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से बता दीजिए। इसमें क्या करना है आपने, देखिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, देखो ये होमोजीनियस तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, होमोजीनियस तो ये होगा नहीं, और यहाँ पे भी देखो तो 2 + 2 4 देगा, होमोजीनियस नहीं है। और अगर आप इसमें देखें तो आप इसमें y dx वाला भी कुछ टर्म बना नहीं सकते, लीनियर ऑर्डर बना नहीं सकते आप इसको, तो हो सकता है कि वेरिएबल सेपरेट कर पाए। कैसे, इफ यू सी हियर दिस इज 1 + x square and from the last 2 I can take y square common, तो आई एम जस्ट लेफ्ट विद दिस, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, -xy / dx, ठीक है। नाउ इफ वी सॉल्व इट फर्दर I can write like this, 1 + x square common from both and we are just left with 1 + y square. We have done the factors, -xy / dx. Now I can factorize that. How? Under root of 1 + x square, just separate the under root. Y square equals to -xy / dx. Now you see that we can separate the variables. How? Under root of 1 + x square divided by what? Divided by x dx equals to, and it will be what? Y dy divided by under root of 1 + y square, and take the, this was minus sign, and now take the square. I hope it is clear. समझ में आया क्या करना है, ठीक है। अब कर सकते हैं, इसको टी पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा, and simplify this also. अब तो कर सकते हैं। Now this is your part for integration. अब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब इतना सारा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, अब तो इजी है, और नहीं होता तो फिर से मुझे बता दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपका उसका शॉर्ट्स बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। प्लीज अगर आपको कभी लगता है ना कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैम सेपरेटली वीडियो नहीं बनाएगी, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका उसी क्वेश्चन का एक शॉर्ट छोटा सा बना के 1 मिनट का वीडियो बना के और मैं आपको फटाफट से दे दूंगी, आपको जितनी बार देखना उतनी बार देखिए, ठीक है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आप मुझे कमेंट में हमेशा बताते हैं और वही आप बताएंगे। एलपीपी का क्वेश्चन तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अब तो यार हद हो गई है। अच्छा, मेरे बच्चों से ना एक बार एक वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा था, इस बार मेरा जो वाइवा हुआ था, बच्चों का मैंने वाइवा लिया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट होता है जो कि एलपीपी के हर क्वेश्चन में आता है, और कोई नहीं बता पाया। अरे भाई, ये वाला कंस्ट्रेंट x > y and y > 0, ये हर एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको। ये कंस्ट्रेंट होता ही है, क्योंकि x और y जो आपके पास होते हैं वो कमोडिटीज, कुछ वैल्यूज होती है विच आर ऑलवेज > 0। तो ये दो ऐसे कंस्ट्रेंट है जो हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे, बाकी अब क्या ही बोलूं मैं, और कोई नहीं बता पाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। आपको ए दिया है, आपको ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स निकालना नहीं आता आपको? आता है ना, तो डिटर्मिनेंट निकालिए। कितना डिटर्मिनेंट आएगा यहाँ से, फटाफट से बता दीजिए कितना आने वाला है। 0 ऑफ 0 - 1, देन -1 ऑफ कितना आएगा यहाँ से, 0 - 1 एंड देन +1 ऑफ 1 - 0, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना आया, ये तो पूरा 0 होने वाला है, ये हो जाएगा 1 और यहाँ से +1 और इधर से कितना आने वाला है, इधर से आने वाला आपका डिटर्मिनेंट कितना 2 आने वाला है, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना सबको आता है, मैं डायरेक्टली लिख दूं एडजॉइंट, निकाल लेंगे ना, -1 -1 -1 और ये बाकी 1 1 1 बचेंगे। यही होता है प्रैक्टिस करने का नतीजा नतीजा कि आप लोगों को ना पता चल जाता है चीजों में होगी क्या। तो इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया, जस्ट पुट योर वैल्यूज 1/2, इट विल बी -1 -1 -1 -1 डायगोनली, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 1 1 1 1 1।
ये आपका इनवर्स आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको यूज करके आपने क्या करना है, इसको यूज करके आपको ए इनवर्स को यूज करके आपने क्या निकालना कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3i डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, फटाफट से बता दीजिए। अब ऐसा नहीं कि इनवर्स निकाल, अब नहीं, आप सिर्फ ये चीज सॉल्व करिए और आप प्रूफ कर दिए कि आपने जो इनवर्स निकाला है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसमें, सिर्फ आपने अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। क्या था राइट हैंड साइड, दैट वाज a स्क्वायर माइनस 3i डिवाइड बाई 2, आपने ये करना है। और 1/2 को थोड़ा बाहर ही रख लीजिए, क्योंकि अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में ना 1/2 बाहर आ रहा था ना, तो सिर्फ उसको सॉल्व कर दीजिए। कितना आ जाएगा वो, इट भी आपने लिखना है सिर्फ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 और माइनस ऑफ 3 ऑफ दिस 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ये आपने सिंप्लीफाई करना है। और अगर आपने आंसर ला दिया कितना -1 -1 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, दिस वाज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यही होता है कि पहली वाली चीज को यूज करके दूसरी वाली चीज को निकालना। बात समझ में आई? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 34 एंड नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी व्हिच इज आवर क्वेश्चन नंबर 35। फिर हमारे पास सिर्फ हमारा केस स्टडी बच जाएगा जो कि बहुत इजी है और आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा टाइम ले जाएगा, चलिए करते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टाइम लेगा कोई बात नहीं। आपको एक फंक्शन दिया है fx, ये दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि आपको फंक्शन fx और फाइंड fx प्लस f ऑफ 1 बाई x। चलिए fx तो दे ही रखा है, f ऑफ 1 बाई x निकालते हैं। 1 बाई x का मतलब है you need to replace your x as 1 by x. So what you'll do here, limit integral 1 to x, क्या करेंगे इसमें, so it will become integral 1 by x और ये बन जाएगा log of et डिवाइड बाई t है तो t में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सिर्फ x कहाँ पे है, x आपकी लिमिट में है। ठीक है, तो हमने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, पुट योर t इज इक्वल टू लेट्स सपोज 1 बाई u, तो हमारे पास वी कैन राइट लाइक, कैन वी डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो यहां से हमें ये देगा dt का वैल्यू कितना देगा, dt विल बी माइनस ऑफ 1 बाई u स्क्वायर du। अब हमने जब पुट किया है तो हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं। ये कितना है, t का लिमिट है ना, ये t का लिमिट है, t इज इक्वल टू कितना है 1 है, t इज इक्वल टू 1 अगर है तो u भी कितना हो जाएगा 1 रखिए, 1 u भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट पुट किया है तो चेंज भी करना पड़ेगा। अभी t का वैल्यू कितना है 1 बाई x है, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u भी हो जाएगा हमारे पास x। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे log of t का हमने क्या पुट किया था, इट वाज log of u डिवाइड बाई 1 प्लस इट विल बी 1 बाई u ओनली, और यहाँ से हमारे पास क्या है dt का वैल्यू, दिस वाज माइनस ऑफ 1 बाई a स्क्वायर। अब आप बोलोगे आपने मैम ये क्यों किया, अभी बताती हूँ क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगी चीजें कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, now if you simplify it, it will be equals to integral 1 to x log of कितना, I can write it log of 1, इसको I can write like log of 1 minus log of u, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से आपके पास आएगा u plus 1 divided by u and you will have from here minus of 1 by u square du। ठीक है, now अगर आप इसका वैल्यू, दिस विल गिव मी व्हाट 0, और ये माइनस और माइनस विल बना देगा क्या, प्लस बना देगा। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए, तो वी आर लेफ्ट विद 1 to x log of u into u डिवाइड बाई u plus 1 into 1 by u square du। दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट विद दिस, तो हमारे पास बचा है 1 to x log of u डिवाइड बाई u of u plus 1 d। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारा अर्लियर क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ t, बट यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, u में है, लेकिन हमारा इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता है किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि इफ यू हैव लिमिट सपोज a to b fx dx है हमारे पास, then you can write like this without changing the limit, you can change the variable, आप इसको f dt कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। t है तो x में आप चेंज कर सकते हैं, x में t में, तो हमारा फंक्शन क्या है इसमें, x u में है, तो I can write it 1 to x, क्योंकि फंक्शन ऑफ अर्लियर वी वर हैविंग इन व्हाट, t में था, तो इसको हम u ऑफ log of t कर देते हैं डिवाइड बाई t ऑफ t plus 1। ठीक है, कोई परेशानी, क्या किया मैंने, चेंज ऑफ वेरिएबल, अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दिया है। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन में। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो हमारे पास था fx was equals to
इंटीग्रल 1 to x log of t डिवाइड बाई t plus 1 dt। और हमने जो निकाला, हमने क्या निकाला, हमने निकाला f of 1 by x as सेम, f of 1 by x हमने जो निकाला वो सेम रहा, बट एक चीज फर्क आ गई, क्या, log e t अपॉन t of t plus 1 आ गया, नीचे t आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है, अब उसने क्या किया, इन दोनों को भाई ऐड ऑन कर दीजिए। चलो ऐड ऑन कर देते हैं। ऐड ऑन अगर आप इसको करेंगे तो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर, दोनों की लिमिट तो सेम रहने वाली है। और आप इसको देखें, log ऑफ ई टी अपॉन टी प्लस 1 दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, बचा क्या, 1 प्लस 1 बाई टी। देख लीजिए, देखिए ये कॉमन है तो मैंने बाहर लिख दिया, टी प्लस 1 कॉमन है तो क्या बचा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 बाई टी बचा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे अगेन 1 to x log ऑफ ई टी अपॉन टी प्लस 1, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर आएगा t प्लस 1 और नीचे आएगा t ओनली। ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट। और अब क्या करें, अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। आप क्या करें, पुट योर log x as what, log t as what, log t as what, log t is equals to क्या करें, v पुट कर लेते हैं, यू तो पहले किया था, तो इट विल बी 1 by t dt इक्वल्स टू dv। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन क्या, इंटीग्रल, लिमिट चेंज करेंगे, टेंशन मत लो, log t तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और t ये वाला पूरा, दिस विल बिकम व्हाट, dv। और लिमिट भी चेंज करनी है आपने, लिमिट क्या थी पहले, ये पहले लिमिट ये क्या था, t इक्वल्स टू x था, तो t इक्वल्स टू x में यहाँ पे कितना आ जाएगा, log ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x। तो ये वाला था log ऑफ 1, log ऑफ 1 का मतलब ये वाला हो जाएगा 0। तो यहां से आया आपके पास v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log x डिवाइड बाई 0, और इसका मतलब आपके पास आएगा log x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि माइनस वाला 0 तो ये होने वाला है, तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर। इट विल बी log ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस विल बी आंसर। ठीक है, लेकिन उसने आगे पूछा है log ऑफ e प्लस f ऑफ 1 बाई e। उसने बोला है कि अब उसने क्या करना है, अब उसने आपसे क्या पूछा है, ये तो देखो, ये तो हो गया इसका, ये आपका आंसर आया किसका, f ऑफ x 1 1 x का। मेरे ख्याल कोई कोई क्वेश्चन होता है जो बहुत टाइम खा जाता है, ये हमारा इसका आंसर आया। ठीक है, बट ही इज आस्किंग मी फॉर द आंसर ऑफ f ऑफ e प्लस f ऑफ e 1 बाई e, और बोला है कि आंसर शुड बी 1 बाई 2। तो क्या करना है, x को सिर्फ k से रिप्लेस कर देना, e से रिप्लेस कर देना, तो इट विल बी log ऑफ e होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हो गया, क्योंकि ऑलरेडी निकाल रखा था, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, x की प्लेस पे e आ जाएगा, और आपको पता है log e का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इट विल बी 1 बाई 2, एंड दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है, सब्स्टिट्यूशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब टफ नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो टफ नहीं है, अगर आप इसको करने बैठेंगे, वंस यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन मींस यू नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर पढ़ के ही समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। तो दोनों चीजों में ना फर्क होता है कि आपको पढ़ के समझ में आ जाना, पढ़ के समझ में नहीं आना। सो दैट वाज एंड ऑफ द सेक्शन डी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। फटाफट से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट खत्म करते हैं, दैट विल बी एंड ऑफ द वीडियो। सो ये केस स्टडी कर लेते हैं फटाफट से, सेक्शन ई की। फॉर ए फंक्शन वही से दे रखा है उसने कि एफ एक्स माइनस एक्स के साथ लेते हैं तो इवन होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस के साथ आ जाए तो वो ओड होता है। ठीक है, और फिर ये प्रॉपर्टीज होती है, उसने बोला कि शो दैट एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं। एफ एक्स का वैल्यू उसने मुझे दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मुझसे पूछ रहा है कि चलो बताइए कि वो ओड फंक्शन है। ओड के लिए मैं क्या करती हूँ, एक्स को रिप्लेस कर दूंगी माइनस एक्स से, तो ये दिस विल गिव मी सेम, और साइन ऑफ दिस विल गिव मी माइनस ऑफ एक्स, तो हमारे पास आ जाता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। और अगर आप इसको देखें, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, और इसका मतलब यही होता है कि ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ओड फंक्शन हो जाएगा। ओड फंक्शन हो गया, वेरी ट्रू। चलिए बात करते हैं सेकंड वाले की। अब करना इवेल्युएट दिस टू दिस। अभी आपने किया कि ये फंक्शन क्या था, ओड था। अभी तो सिंस क्या, सिंस फ्रॉम 1 वी कैन राइट 1, दिस जो हमारे पास फंक्शन दिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओड फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधा हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले की, इसकी। अब इसकी अगर हम बात करें, एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, अगर माइनस से रिप्लेस किया भी तो कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स एंड साइन के साथ ये, तो ये ओड तो नहीं होने वाला, इट विल बी एक्स ऑफ साइन एक्स, इट विल बी द सेम एज, इट विल बी इवन फंक्शन। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको, फटाफट से बताइए। इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स। तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, वी कैन राइट इट ट्वाइस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स। ठीक है, और अब लगाइए क्या, लगाइए आईलेट एंड सोल्व योर क्वेश्चन। आईलेट लगाइए, सोल्व करिए। ठीक है, मैं नहीं करती, ठीक है, आप लोग करेंगे। थर्ड वाले की बात करते हैं, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। फिर से वही करना है आपने, फिर ट्वाइस आप ले लेंगे इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, और 0 टू पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन विल बिकम पॉजिटिव, साइन dx रहेगा, तो कितना वैल्यू दे देगा, तो विल ट्वाइस ऑफ कितना होता है, माइनस होता है, माइनस कॉस, माइनस निकाल लेते हैं थोड़ा, कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाई टू पे, तो कितना आंसर है वाला, माइनस 2। कॉस पाई बाई टू कितना होता है, कॉस पाई बाई टू 0, और माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा +2। क्लियर है बात। सो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 36। केस स्टडी बहुत इजी आती है, बहुत टफ नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं बराबर से। आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बोल्ड फैक्ट्री दी है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स आपको दी है A, B और C, तो कुछ उसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, कितना कितना है, A का आउटपुट है कितना 25% बनाता है, 35% बनाता है B, और C बनाता है आपके पास 40% ऑफ द टोटल बोल्ड्स बनते हैं वहां पे। अब उनके जो आउटपुट है, चलो बनाते तो है, उनमें से ना कुछ डिफेक्टिव भी होते हैं, कि जो बनाया है उसमें से इसका 5% डिफेक्टिव निकलेगा, इसका 3% डिफेक्टिव है, सॉरी 4%, एंड द C हैज द डिफेक्टिव केस एज ऑफ 2%। वो बोल रहा है कि भाई बता दीजिए फटाफट से। सो दिस इज योर E1 इवेंट, दिस इज योर E2, दिस इज योर E3, दिस विल बी A by E1। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्लीज दिस इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, और दिस इज योर व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। ठीक है, चलिए ये तो मैंने पहले इसको शॉर्ट आउट कर लिया। अब बात करते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव भी है, और कहां से हुआ है, ए क्या था हमारा, ए डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव है और कहां से ड्रॉ हुआ है, बी से ड्रॉ हुआ है, बी मतलब E2 से ड्रॉ हुआ है। तो कितना आंसर आने वाले फटाफट से, गिवन दैट है ना, और देखो प्रोबेबिलिटी उसी उसने लिखी है, गिवन दैट ऐसी तो होता है A by E2, तो डिफेक्टिव डिवाइड बाय फ्रॉम बी से निकला है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4%। दिस विल बी द आंसर। दूसरा, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सी, इस बार क्या आ जाएगा, इस बार आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3, इस बार C से निकला है, तो आंसर विल बी 2 by 100। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ द बोल्ट डिफेक्टिव इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय B। अब बताने की जरूरत है इसका आंसर कितना है, बता दीजिए फटाफट से। कौन सा निकालेंगे, अब क्या लिख देंगे, फिर से ये लिखेंगे मैडम यही है, नहीं, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, इट इज प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव then it is manufactured, डिफेक्टिव है then it is manufactured by B। तो आप कैसे निकालेंगे, जो नॉर्मली आप निकालते हैं अपना, पहले तो इसका टोटल बताइए कितना आएगा, 25% मल्टीप्लाई विथ 5% प्लस 35% मल्टीप्लाई विथ 4% प्लस 40% मल्टीप्लाई विथ 2%। ये तो होगा टोटल, लेकिन किसका केस है, बी का केस है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये बी वाला जो हमारे पास है वो ऊपर आ जाएगा 35% इंटू 4%। ठीक है, पहला केस क्लियर हुआ कि 1 2 3 में क्या आने वाला है, कोई परेशानी वाली बात कि कैसे होगा, आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 37 एंड नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। इस ये भी प्रोबेबिलिटी का ही दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए इन ए टेस्ट इधर यू गेसेस और कॉपी द आंसर, कॉपी और नोस, तीन चीजें हैं, यू गेस, यू कॉपी और यू नो। तो मेरे पास 3 इवेंट हो गए, फर्स्ट वाला यू गेस द आंसर, सेकंड वाला यू कॉपी द आंसर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड थर्ड वन यू नो द आंसर। ठीक है, और किसकी बात हो रही है, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर की बात है जिसमें 4 चॉइस है। प्रोबेबिलिटी दैट यू गेस द आंसर इज व्हाट, इट इज 1/3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इवन की होगी कि आपने गेस करने का प्रोबेबिलिटी यू हैव द 1/3, यू कॉपी द आंसर इज व्हाट, यू कॉपी द आंसर मींस 1/6, सॉरी इट इज 1/6, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर, बता सकते हो कितना आएगा, कितना आएगा, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ऑब्वियस सी बात है, 1 माइनस में से सारे निकाल देंगे, तो कितना आया, 1/2 आया।
ठीक है, तो इफ यू नो द आंसर मींस प्रोबेबिलिटी इज 1/2। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट मतलब प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट होना, करेक्ट है ना, ये करेक्ट मतलब आपके पास ए हो गया, ये a by even when you guess it, प्रोबेबिलिटी इज कितना 1/8। प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू आर कॉपिंग मतलब ये वाला पार्ट कितना है 1/4। और अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a/e3। एक बात बताओ बेटा जी, क्या होना चाहिए, आप नो द आंसर तो 1 ही रहने वाला है, आपको आंसर पता है तो आंसर तो सही आएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, इट इज बी 1। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे आपको आंसर बताने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर गिवन दैट यू करेक्टली आंसर्ड इट। मींस व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट हियर, करेक्टली आंसर्ड, यू नो द आंसर। नो द आंसर का मतलब फेवरेबल कौन सा हुआ, फेवरेबल हुआ ऊपर नो और नीचे आ जाएगा टोटल। टोटल का मतलब यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 1/3 1/8 प्लस 1/6 into 1/4 प्लस जस्ट मल्टीप्लाई इनटू 1/, आपने क्या कर देना, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करते हैं ना लास्ट में, इनको मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, और फेवरेबल कौन सा है, यू नो द आंसर, सो 1/2 into 1 का केस आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर फेवरेबल केस। ठीक है, और लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसर द क्वेश्चन। करेक्टली आंसर द क्वेश्चन का मतलब क्या पूछा है उसने क्या पूछा है, बताएंगे फटाफट से, बताइए क्या पूछा है उसने, सिर्फ आपसे टोटल का पूछा है, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी है, यू करेक्टली आंसर, उसने ये नहीं बोला कि देखो, उसने बोला कि फाइंड द टोटल लिखा है ना यहाँ पे, टोटल प्रोबेबिलिटी, आपने जो पीछे निकाला था, सॉरी क्या था, ये था 1/3 1/8 प्लस 1/6 into 1/4 प्लस 1/2 into 1/2, तो कितना आया 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/2 and that you will have what 24 is that, so 1 plus 1 plus 12 कितना, this will be 14 divided by 24 and 7/12 will be the answer. So this will be the answer and this is your end of the section paper number 9 with all the sections I have explained each and every question. I hope you like the video and if you like प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैं बार बार बोलती हूँ सब्सक्राइब करिए, जो भी डाउट्स है क्लियर करके मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट है आप मुझे प्लीज बताइए सो दैट आई कैन सॉल्व इट। ठीक है, और पेपर कर लिया है तो वो भी बताना है कि मैडम दिस पोर्शन वी हैव डन, बिकॉज मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि आप लोगों ने कितना किया है। उसी तरीके से ना आई हैव द लाइक आपका एक मेरे पास आपकी प्रोग्रेस नोट हो रखी है कि आपने कितना काम कर लिया है। सो टिल देन नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट विद द पेपर नंबर 10, हमारे 10 पेपर हो जाएंगे जो कि आज के 2 दिन बाद फिर से आपको मिल जाएगा। आप ये करिए फटाफट से, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना घिस सकते हैं पेपर को, पेन को, खुद को घिसिए। 2 महीने है, 2 महीने में अपनी जिंदगी को एक चमका दीजिए बिल्कुल अच्छे से। जो बोलते थे ना कि हमारे इतने नंबर नहीं आ सकते, तुम्हारे इतने नहीं आ सकते, हम उनको गलत प्रूफ करेंगे और हम उतने लेके दिखाएंगे और अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। नॉट ओनली द क्या नंबर्स और मार्क्स, हम अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करेंगे, अपनी एरिया को, नॉलेज का एरिया को भी वाइड करेंगे। ठीक है, सो टिल देन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड आई होप कि एवरीबडी विल डू। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन यू कीप बी पॉजिटिव एंड प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड लक, बाय।